Hello guys, welcome back to my channel and very good morning to all of you. एक्चुअली अभी मॉर्निंग नहीं रहा क्योंकि अब बजे हैं 10:30 और मैं अब जाऊंगी वर्कआउट करने। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ वर्कआउट शेयर करूं जो हमारे एक बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं, सबके साथ ही लगभग होते हैं, वो है ब्लोटिंग। जी हाँ, वो ब्लोटिंग का वजह तो बहुत कुछ होता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है डाइजेशन ना होना। और हम लड़कियों की एक प्रॉब्लम होते हैं जो पीरियड्स के टाइम हमारे ब्लोटिंग होते हैं। तो मैं पहले ब्लोटिंग के कुछ वर्कआउट दिखाऊंगी कि किस तरह से ब्लोटिंग से आप छुटकारा पा सकते हो, और फिर मैं बताऊंगी कुछ टिप्स। तो चलिए पहले वर्कआउट दिखाते हैं। At first, go for a tabletop position, and from here go for downward facing dog. In this position, inhale and exhale normally. From this position, just push your body up and try to arch back as much as possible. Now get into child's pose. Now take your right leg forward like this and left leg backward, and slowly spread your arms into the front and try to touch the forehead on the floor. If you are not comfortable on this position, then just arch back as much as possible and stay here for minimum 10 counts. Now switch side and do the same. Breathing will be normal in this position. Inhale and exhale normally. Don't hold the breath. Now we do Padahastasana. If you are comfortable, then try to touch your nose with your knees. And if you are not comfortable, then just do this position. Now take your right foot on your thigh and try to catch the finger with your right hand, and left hand will be on your left foot, and bend down. If you are not comfortable, then just do this. Now switch side and do the same. Now take your both feet near to the abdomen. This is called butterfly pose. You can feel a stretch in your lower abdomen. If you feel comfortable in this position, then just move your knees like that. Now spread your feet
little forward and try to touch your forehead with your feet. Now slowly spread your hands forward. Now sit into Padmasana. If you are not comfortable, then just sit on a Sukhasana posture. Now keep your both palm on your lower abdomen and just bend down and try to touch your nose and forehead on the floor. Now we go for Pavan Muktasana position. Take your left knee to your chest and hug it. If you are not comfortable, then just hold it with your palm. Now switch side. Breathing will be normal. Now take both knees to your chest and hug it tightly and pull and push the rectum. Now spread your hands and bend your both knees to the right side and breathe normally and stay here for minimum 10 counts. Now switch side and do the same. गाइस यही था कुछ सिंपल सा वर्कआउट। तो गाइस मेरा वर्कआउट तब हो गया है और आपको देख के पता ही चल रहा है कि एकदम थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को ये वर्कआउट दिखाने के बाद भी मैंने 1 आवर ज़ुम्बा वर्कआउट किया, तो थोड़ा सा थकान तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं। चलो, बहुत जोर से भूख भी लग चुकी है। अब मैं जाऊंगी मेरा ब्रेकफास्ट खत्म करने, फिर मुझे तो जाना है मेरे बच्चों के पास। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट में मैं कुछ हल्का फुल्का लेने का सोचा, तो मैं यहाँ ले लिया सोया मिल्क जो बिल्कुल शुगर फ्री है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही मिल्क ले लिया। इसके साथ मैंने ले लिया है एक ब्रेड और एक अंडा। मैंने ब्रेड के ऊपर कोकोसोल लगा लिया है और मैंने ब्रेड एक ही लिया क्योंकि आई ट्राई टू अवॉइड ब्रेड एंड प्रेफर घर का बना हुआ व्हीट रोटी। दिस इज़ माई होल ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे निकलना है बच्चों के लिए, और मेरा सनस्क्रीन आ गया है। जी हाँ, मेरा लैक्टोकैलामाइन SPF 50, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये फॉर ऑयली स्किन, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा स्किन ऑयली है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। बस थोड़ा सा ही ले लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं।
बस। और अगर कोई सनस्क्रीन थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है उससे, तो मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। बट लैक्टोकैलामाइन जैसे कि लोशन है वैसे ही ये सनस्क्रीन भी है, बिल्कुल भी इससे आपको चिपचिप नहीं होगा का फेस। थोड़ा सा हाथ में भी लगा लेती हूँ। ये देखा आपने, बस इतना सा लिया, पूरा का पूरा कवर अप हो गया बस। मैंने आज एक छोटी स्लीव वाली टॉप पहन ली है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्वार्टर स्लीव या फुल स्लीव पहनने की। जी हाँ, क्योंकि इतनी धूप में आप अगर आपके हाथ को ढक के रखो वही बेहतर होगा। और जितना हो सके लूज फिटिंग्स कपड़े पहनने की कोशिश करना, ठीक है। कॉटन मटेरियल हो, सिंथेटिक मटेरियल अवॉइड करना इस समर में, क्योंकि नॉट ओनली कि आपको गर्मी लगेगा बट सिंथेटिक मटेरियल इस गर्मी में आपके स्किन के साथ बहुत बैड रिएक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड सिंथेटिक और अदर मटेरियल एंड प्रेफर जस्ट कॉटन मटेरियल। तो हो गया मेरा सनस्क्रीन लगाना, अब मैं निकल रही हूँ। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ बच्चों को खिला के। अब बजे हैं दोपहर की 1 और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो सच में मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा है मुझसे, मतलब ये धूप की वजह से, गर्मियों की वजह से थकान ज़्यादा होता है इस वक्त। तो मैं सीधा जाऊंगी नहाने, फिर आके मिलती हूँ लंच पे। तो मैं सीधा लंच पे आ गई। आप देख सकते हो मैंने कितना कम क्वांटिटी का राइस लिया है और इसके साथ एकदम सिंपल सा फिश करी और दही। गर्मियों में दही अपने डाइट पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम 5:30 बज गए और मैं अपना फेवरेट ग्रीन टी के साथ आ गई। मैंने सोचा कि थोड़ा लंबी बातचीत करनी जो है तो चाय के साथ क्यों ना करें। तो जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि आज मैं ब्लोटिंग के बारे में बात करूंगी, तो चलिए पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग वो होता है कि आप शायद वर्कआउट कर रहे हो, सही तरीके से डाइट भी कर रहे हो, फिर भी कभी कभार आपको लगे कि आपका पेट अचानक से निकल आया, और वो जो पेट निकल आ रहा है इसकी वजह से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ प्रेशर सा फीलिंग हो रहा है आपकी पेट के अंदर, और पेट शायद ऐसे फूला हुआ है, तो उसी को कहते हैं ब्लोटिंग। इस टाइम हमें लगता है कि अचानक से क्या हमारा फिर से वेट गेन होने लग रहा है। नहीं, ब्लोटिंग के बहुत कुछ वजह होता है। तो मुझे जो कुछ भी पता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है ब्लोटिंग का वो है इंडाइजेशन। तो व्हाट इज़ इंडाइजेशन, ये तो हम सबको ही पता है कि हज़म ना होना। तो हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, वो है व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट एंड व्हेन टू ईट। व्हाट टू ईट ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार कह चुकी हूँ। आफ्टर ऑल मैं हर रोज़ की व्लॉगिंग में मैं पूरे दिन में क्या खा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्हाट टू ईट ये मैं अलग से और कुछ नहीं बता रही हूँ। नाउ हाउ टू ईट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट इसके पहले मैं व्हेन टू ईट इसको बता देती हूँ। हमें हर रोज़ एक टाइम मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर ये करते हैं कि काम के चक्कर में हमारा टाइम गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा पहला मील और आखिरी मील पर, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर पे। ब्रेकफास्ट टाइमली करो, डिनर टाइमली करो। हमारे इंडियन आयुर्वेद में कहते हैं कि सूरज उठने के साथ साथ खाना शुरू करो और सूरज ढलने के साथ साथ खाना ख़त्म करो। सूरज ढलता है 5:30-6 बजे। हमें तो पॉसिबल नहीं है हमारी बिज़ी स्केड्यूल में कि 5:30 बजे 6 बजे हम डिनर ख़त्म कर लें। तो इसके लिए हम क्या करें,
5:30 बजे 6 बजे डिनर करने की बात मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो, अगर कर सकते हो तो इट विल बी बेस्ट, बट पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए तो क्या करें। ट्राई टू कंप्लीट योर डिनर विद इन एटलीस्ट 8:30 PM। अगर ना भी हो 9 PM। अगर वो भी ना हो पा रहा है, 9 PM तक एकदम सही टाइम है। अगर वो भी बिल्कुल आपसे नहीं हो रहा है, 10 PM हो रहा है तो क्या करें। वो 9 PM वालों भी ये कर सकते हैं, मैं भी एक्चुअली करती हूँ। जैसे मेरा डिनर ख़त्म हो जाता है 7:30 से 8 बजे के अंदर, फिर भी मैं कभी कभार ये करती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा हेवी कोई खाना खाना पड़ता है उस दिन तो मैं ये करती हूँ, वो है आप डिनर ख़त्म हो जाने के बाद थोड़ा सा, मतलब एक छोटू सा क्यूब अदरक का लेके उसके साथ थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, मतलब एकदम 1 पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट मिला के एकदम उसको चबा के खा लो। ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा। और सोने से पहले, मतलब जब आप रात को सोने जा रहे हो उससे पहले आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर या फिर थोड़ा सा ग्रीन टी, और जो लोग वेट गेनिंग जर्नी में हो वो लोग आप नॉर्मल टेम्परेचर में 1 कप, ऐसे ये साइज़ का कप हो सकता है, 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर के 1 कप मिल्क ले सकते हो। ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। जो लोग मेरी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो वो लोग तो एक टाइम शेड्यूल में हो, और जो लोग नहीं कर रहे हो, मतलब जिन लोगों का एक नॉर्मल टाइम चल रहा है, वो लोग ट्राई करो सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर स्टमक में कुछ ना कुछ डालने की। आप कहोगे तो आप तो 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। जी हाँ, मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, बट मैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में हूँ इसका एक रूल होता है, मैं वो रूल भी मेंटेन करती हूँ। बट आप वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल रूटीन में हो, तो आपको ये रूल्स मानना होगा। सुबह उठते ही, मतलब आप पिछले दिन भिगा हुआ काली चना ले सकते हो, बॉइल्ड काली चना ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मगर कुछ ना कुछ दो स्टमक को, ठीक है, एटलीस्ट विद इन 30 to 40 मिनट्स। डिटॉक्स वगैरह ये तो है ही। और लंच, आज अगर आप 1 बजे लंच करो, कोशिश करना अगले दिन एटलीस्ट 1:45 बजे के अंदर अपना लंच ख़त्म करने की। 1 बजे को घसीट के 2:30 बजे या 3 बजे मत लेके जाना, इतना टाइम गैपिंग मत करना। तो ये हो गया व्हेन टू ईट। नाउ हाउ टू ईट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको आखिर में रखा। हाउ टू ईट, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। हम जब खाना खाते हैं तब हम ज़्यादा लोग करते हैं कि खाने पर ध्यान नहीं देते, मतलब क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं, मोबाइल लेके खाते हैं, या फिर घर के सारे लोगों के साथ बात करते करते खाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते खाते हैं। ये बिल्कुल मत करना प्लीज़। आप जब खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान आपके खाने पर दो। इससे क्या होगा, आपको सही तरीके से खाना को चबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट पोर्शन ऑफ डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। तो हम अगर खाने को अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं तो वो जब हमारी अंदर जब जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम तो होगा ही। और क्या करते हैं कि अगर हमारे ध्यान कहीं और है तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमें जितना खाना ज़रूरी है, क्या हम उतना ही ले रहे हैं कि उससे ज़्यादा ले रहे हैं कि उससे कम ले रहे हैं। ये भी हमारी ब्लोटिंग का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है कि हम खाने के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा, अगर ना भी हो पानी पीते ही पीते हैं। इस हैबिट को प्लीज़ दूर करें। खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद पानी लें। खाना खाने के साथ साथ या फिर तुरंत उठते ही पानी मत पीना। ये जो समर चल रहा है, इस टाइम
रात को जितना हो सके लाइट खाना लेना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी कभार आप चीट कर रहे हो, मतलब बिरयानी वगैरह ऐसा कुछ खा रहे हो तो ये ट्राई करें लंच पे ले लेने की, डिनर पे नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर मेंटेन करो तो आप ब्लोटिंग से आपको छुटकारा मिल सकता है। और हम लड़कियों की एक कारण के लिए हमें ब्लोटिंग होते हैं, वो है पीरियड्स। बहुत सारे लड़कियों की, मुझे भी होती है, कि पीरियड्स के टाइम और पीरियड्स के एक हफ्ते पहले से हमें ब्लोटिंग होती है। इसका कारण भी थोड़ा सा इंडाइजेशन है, क्योंकि इस टाइम इंडाइजेशन होता रहता है हमें, तो इसके लिए हल्का फुल्का खाना लेना ही ठीक है। और मैंने जो सारा वर्कआउट दिखाया वो सारा करें तो ब्लोटिंग से छुटकारा मिल सकता है। और एक चीज़ जो मैं खुद करती थी और मुझे रिज़ल्ट भी मिला, वो है मैं पीरियड की, मतलब जब मेरा डेट है उसकी एक हफ्ते पहले से मैं कोर योगा करती हूँ। तो इससे मैंने ये 3-4 महीने से करा और मैंने देखा कि सच में मुझे रिज़ल्ट मिला। मेरा ब्लोटिंग एकदम से चला गया ये तो मैं नहीं कहूँगी, बट लगभग बहुत कम हो गया है ब्लोटिंग। तो आई होप आप भी इसको थोड़ा सा ट्राई करें और देखें कि आपका भी कम होता है कि नहीं। मैं मेरे अगले कुछ वीडियोस में कोर योगा डालने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, अब 6 बज गए और मुझे जाना है मेरे बच्चों के पास। आके मिलते हैं डिनर के साथ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 पराठा जो कि घर का बना हुआ है, और ये होल व्हीट पराठा है जो मैंने थोड़ा सा घी डाल के बनाया, और साथ में है चिकन करी, वो भी घर पे बना हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से बना है। और थोड़ा सा गुड़ मैंने ले लिया क्योंकि डिनर के बाद गुड़ लेने में डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और साथ में 2 अनियन। तो गाइस, मैं अपना डिनर ख़त्म करके आ गई हूँ। थोड़ा सा हेवी डिनर किया मैंने आज। आई नो, हेवी मतलब थोड़ा सा रिच हो गया, बट ये घर पे बना हुआ है बिल्कुल, और उतना मसालेदार नहीं बनाया था, तो इसीलिए मुझे डाइजेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं अब जाऊंगी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं खाने के तुरंत बाद बैठ नहीं जाऊंगी, इसे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, फिर आके मैं पढ़ाई करने बैठूँगी, फिर सोने जाऊँगी 11 साढ़े 11 बजे। तो आप लोग भी इसी तरह से खुद को मेंटेन करें। और हाँ, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, खुद को एक्टिव रखें। जो लोग बिज़ी स्केड्यूल में वर्कआउट करने का मौका नहीं मिलता, वो लोग जितना हो सके वॉकिंग करें। ऑफिस में या फिर घर पे भी जितना ज़्यादा हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ऑफिस में या फिर कहीं पे भी हम लोग ज़्यादातर लिफ्ट यूज़ करते हैं कि यार देर हो गया, चलो जल्दबाजी में। देर से भी ज़्यादा हम लोग वी आर लेज़ी आफ्टर ऑल। लगभग 90% पीपल यूज़ करते हैं लिफ्ट। तो खुद को एक्टिव रखने के लिए जितना ज़्यादा हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, तो इसी तरह से आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। तो गाइस, मेरा ये वीडियो मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना अगले वीडियोस में आपको और क्या क्या टिप्स चाहिए, क्या क्या वीडियोस चाहिए। आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और उसके बाजू वाली जो बेल है उसको भी दबा देना। बी एक्टिव, बी फिट एंड बी सेफ। चलो, आज के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।